کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے آٹے کے بحران کی۔ سندھ حکومت اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ گندم نہ ملنے پر ملز مالکان کی احتجاج کی دھمکی ہے۔ آج سے مکمل ڈیلیوری بھی بند کر دی۔ کل سے مارکیٹ میں آٹا ناپید ہو جائے گا۔ گندم کی عدم فراہمی، ترسیل کے دوران چوکیوں پر رشوت طلبی، فلاور ملز مالکان کے شکوے شکایتیں کام نہ آئے۔ سیکٹری خوراک سے مذاکرات ناکام ہونے پر فلاور ملز نے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر دی۔ جو گندم آپ نے انٹیریئر سندھ میں روکی اس کو کراچی آنے دیا جائے، جس پہ گورنمنٹ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور گندم روکی ہوئی ہے انہوں نے انٹیریئر سندھ میں۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ گندم آئے، سستے ریٹ میں آئے، عوام کو مناسب نرخ پہ آٹا ملے، ایک ہی مطالبہ ہے ہمارا۔ اور ہمارے مذاکرات آج ان سے کچھ انیشیل لیول پہ ہوئے تھے لیکن اس میں کوئی ایسی کنکریٹ بات نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہمارے مذاکرات ناکام ہیں اور ہم 7 بجے سے اسٹرائک پہ ہیں غیر معینہ مدت کے لیے۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن سندھ زون کے صدر چودھری عامر میر نے تاریخی فصل کے باوجود گندم نہ ملنے کو سمجھ سے بالاتر قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی اپیل کر دی۔ محترم وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو ہم پچھلے 2 مہینے سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سے ملاقات کر لیں کہ ہم کاروباری لوگ ہیں، وہ بیوروکریٹ ہیں، حکومت چلا رہے ہیں، کوئی چیز ان کے ذہن میں نہ آئے تو ہم ان کو بریف کر دیں کہ سر کیسے چلنا ہے، کام کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ ہم بھی عرصے سے بیٹھے فلاور مل چلا رہے ہیں لیکن وہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب حکم کریں گے ہم مل لیں گے جا کے، شاید ٹائم نہ ہو ان کے پاس۔ گندم کی قلت کے باعث آٹا منمانی قیمتوں پر فروخت کیے جانے کا امکان ہے۔ فلاور ملز مالکان نے چیک پوسٹ ختم کرنے اور گندم لانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آٹوموٹیو ٹریڈرز اینڈ امپورٹرز ایسوسی ایشن کا ریگولیٹری ڈیوٹی کے خاتمے پر رد عمل سامنے آ گیا۔ ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر عامر آرائیں کہتے ہیں کہ ریگولیٹری ڈیوٹی کے خاتمے سے استعمال شدہ درآمدی گاڑیوں کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی نہیں ہوگی۔ 1 سال میں ڈالر 105 روپے مہنگا ہوا۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ گاڑیاں اوورسیز پاکستانی بھیج رہے تھے اپنے عزیزوں کو، جو گاڑی کی کاسٹ 45 سے 50 لاکھ روپے کی آ رہی تھی، آج اسی کی گاڑی کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 65 سے 70 لاکھ روپے آ رہی ہے۔ لیکن آج وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے عزیزوں کو اپنی گاڑی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، جو کہ آر ڈی کے نفاذ کے وقت بالکل ہی ناممکن ہو چکا تھا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ آر ڈی کے ہٹ جانے کی وجہ سے امپورٹڈ گاڑیوں کی قیمتوں میں فرق آئے گا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پریکٹیکلی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے چائے کے شوقین افراد کے لیے ہی بری خبر آ گئی۔ پتے کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا۔ کھلی پتی کے ساتھ مختلف کمپنیوں کی برانڈڈ پتی بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ چائے کی چسکیاں بھی اب جیب پر بھاری پڑیں گی، کیونکہ پتی بھی مہنگی ہونے کے بعد عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ کھلی پتی 1400 سے بڑھ کر 1700 روپے کلو ہو گئی۔ مختلف کمپنیوں کی 900 گرام پتی 200 روپے سے بڑھ کر 300 روپے تک مہنگی ہو گئی۔ دکانداروں نے قیمتوں میں اضافے کی وجہ ڈالر کو قرار دیا، ساتھ ہی پتی طلب کم ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ ریٹ دن پر دن اوپر ہوتے جا رہے ہیں۔ بیچ میں جو یہ مال ڈالر کا جو مسئلہ آیا تھا، اس کے بعد سے جو ریٹ اوپر ہوئے ہیں تو ابھی دوبارہ بیک اپ پہ آئے نہیں ہے۔ ڈیمانڈ کم ہوگی نا بھائی، جیسے آپ کی سیلری 30,000 ہے، آپ کا مہینے کا خرچہ ہو گیا 50,000، آپ 20,000 کہاں سے لاؤ گے؟ شہری کہتے ہیں کہ اب چائے پینا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ تقریباً 2-3 ٹائم تو تقریباً چائے پیتے ہیں، مگر چائے اتنی مہنگی کر دی ہے ان لوگوں نے، اور اس کے باوجود اس کا وزن بھی کم کر دیا ہے۔ جو پیکنگ والی چائے آ رہی ہے نا، خاص طور سے ان کی بات نہیں کر رہا میں، پیکنگ والی چائے کی بات کر رہا ہوں، جو برانڈ ہے انہوں نے پیسے بھی بڑھا دیے اور اس کا ریٹ، اس میں مطلب وزن بھی کم کر دیا ان لوگوں نے۔ ٹی ایسوسی ایشن نے پورٹ پر کنٹینرز کی کلیئرنس میں تاخیر پر پتی مہنگی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ کیمرامین ساجد کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ شہر قائد میں بحرانوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ اب کراچی میں دواؤں کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ کئی ادویات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ تفصیلات رابع اشرف کی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں نیا بحران سر اٹھانے لگا۔ میڈیسن مارکیٹ میں گردے، کینسر اور دل کے مرض میں استعمال ہونے والی دواؤں کی قلت۔ پیناڈول کا پتا 19 روپے سے بڑھ کر 24 روپے کا ہو گیا۔ بلڈ بیگز کی قیمت 400 سے بڑھ کر 700 روپے ہو گئی۔ کلیکزین انجیکشن کی قیمت 1280 سے بڑھ کر 360 روپے ہو گئی۔ کالپول سیرپ 47 سے بڑھ کر 83 روپے کا ہو گیا۔ پیناڈول سیرپ 83 سے بڑھ کر 100 روپے کا بیچا جانے لگا۔ انسولین 600 روپے سے بڑھ کر 1200 میں فروخت ہونے لگی۔ بلڈ پریشر کی دوا ایزی ڈے 250 سے بڑھ کر 400 میں فروخت ہو رہی ہے۔ فارماسسٹ کا دواؤں کی کمی کے حوالے سے کہنا ہے کہ کمپنیوں کے پاس ادویات کا مٹیریل نہ ہونے سے سپلائی کم ہو رہی ہے۔ کینسر، گردے، دل کے امراض میں استعمال ہونے والی دوا تو فروخت ہی بلیک میں ہو رہی ہے۔
गुर्दे की हो गई, शुगर की हो गई और इसके अलावा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हो गई। एक तो ये सारी जो हैं सबके प्राइस जो है इंक्रीज़ हो गए, मतलब 100% बढ़ गए, सबके डबल हो गए। और दूसरा ये मेडिसिन जो है वो आना भी जो है काफ़ी जो है शॉर्ट हुई है, आ नहीं रही है, जिससे पेशेंट को परेशानी भी हो रही है। एक तो था चलें प्राइस उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन अब तो जो है वो मेडिसिन भी जो है कोई भी नहीं आ रही, कंपनी नहीं दे रही, जिसकी वजह से बहुत पेशेंट्स को परेशानियां होने लग गई हैं। दवाओं की किल्लत और महंगी होने से जहां गरीब शहरी परेशान हैं, तो वहीं मेडिकल स्टोर्स मालिकान भी अद्वियात की फ़रोख्त में कमी से नाखुश हैं। कैमरामैन सज्जाद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। कराची में बिजली महंगी होने पर आवाम का पारा हाई हो गया। शहरियों ने सारा गुस्सा के इलेक्ट्रिक पर निकाल दिया। बोले बिजली आती नहीं, लेकिन बिल में इजाफे के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखते हैं सैयद नुमान गुल की इस रिपोर्ट में तफसीलात। और लोड शेडिंग के 27 शहरी बिजली महंगी, 3 रुपए 70 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होने पर शहरी आपे से बाहर हो गए। बोले बिजली आती नहीं, ना लोड शेडिंग खत्म होती है, लेकिन बिल तगड़े भेज दिए जाते हैं। शहरियों को के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। पूरी रात लाइट नहीं होती, पूरी रात, सही है, उसके बावजूद बिल इतने भेज देते हैं कि वाह भाई वाह। जब बिजली नहीं है तो बिल किस चीज का भरेंगे हम? यार आप हाल देखें, 24 घंटों में 6 घंटे लाइट दी जा रही है, 24 घंटों में 6 घंटे, और बिल आप ला के दिखाता हूँ मैं आपको, 24 हज़ार के, 20 हज़ार के, 22 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली सार्फिन को मई के बिल्स में इजाफी अदायगियाँ करना होगी। कैमरामैन शकील खान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। इमाराती कौंसल जनरल बकीत अतीक रोमैती का पाकिस्तान के पहले TDF मैग्नीफाइड इंटरेक्टिव साइंस सेंटर का खुसूसी दौरा है। कौंसल जनरल ने जदीद साइंसी तालीम में नई नस्ल की दिलचस्पी और आगाही बढ़ाने के इस हैरत अंगेज़ इकदाम को भी सराहा है। अहम दौरा किया गया है। इमाराती कौंसल जनरल बकीत अतीक रोमैती का पाकिस्तान के पहले TDF मैग्नीफाइड इंटरेक्टिव साइंस सेंटर का खुसूसी दौरा किया गया। कौंसल जनरल ने जदीद साइंसी तालीम में नई नस्ल की दिलचस्पी और आगाही बढ़ाने की इस हैरत अंगेज़ इकदाम को सराहा है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इमाराती कौंसल जनरल बकीत अतीकुल रोमैती का पाकिस्तान के पहले TDF मैग्नीफाइड साइंस सेंटर का जो है वो दौरा सामने आया है। कौंसल जनरल ने जदीद साइंसी तालीम में नई नस्ल की दिलचस्पी को आगाही बढ़ाने के लिए ऐसे हैरत अंगेज इकदाम को सराहा, जबकि साइंसी शोबे से आगाही और साइंस में आवाम दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कराची में कायम खुसूसी मरकज जो है वो उसकी तारीफ भी की। इस मरकज के जरिए बच्चों में साइंस और टेक्नोलॉजी से आगाही और फरोग को बेहतरीन तरीके से उजागर किया जा सकता है। जबकि उनका मजीद ये भी कहना था कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर का साइंस के बगैर कोई मुस्तकबिल नहीं, जबकि अमली तजुर्बात और पर जोर दिए बगैर महज साइंसी कवानीन पढ़ाने से बच्चे साइंसी मज़ामीन से जो है वो बेदार होते जा रहे थे, जिसको वो ओवरकम करने के लिए एक बहुत अच्छा इदारा काम कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया सलमान सलीम। कराची के इलाके कोरंगी की फैक्ट्री में लगने वाले आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग टिश्यू पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग के बाइस किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। मजीद इस पर तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, कोरंगी सनत एरिया में उस फैक्ट्री के बाहर मौजूद है जहां पर टिश्यू बनाया जाता था, और अचानक जो आग भड़क उठी। फ़ौरन इत्तला दी गई और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची और आग बुझाने के अंदर जो है वो सबसे पहला काम किया गया। मुल्का जो इमारतें हैं वहां पर आग बढ़ने से रोका गया, और रेस्क्यू का अमल जो है उसके लिए रेस्क्यू एहलकार तौर पर जो NGOs काम करती हैं उनके एहलकार यहाँ पर पहुँचे, और तमाम वर्कर्स अंदर जो मौजूद था और जो कीमती चीज़ें थी उन तमाम को जो है वो रेस्क्यू किया। उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड ने जो है अपना काम शुरू किया, और आग जो इस वक्त कंट्रोल में, कूलिंग का अमल जारी है। हमारे साथ जो है वो फैक्ट्री के मैनेजर इमरान मौजूद है। इमरान से जानते हैं, इमरान साहब बताइएगा कि क्या वजूहत आपको समझ में आती हैं, और क्या वर्कर उस वक्त मौजूद थे जब ये आग लगी, और यहाँ पर टिश्यू पेपर के अलावा कोई और ऐसी चीज़ बनाई जाती है जिसमें आग भड़क सके? नहीं, सिर्फ यहाँ पे टिश्यू पेपर थे, जिसके ऊपर ये हुआ कि शॉर्ट सर्किट आ गया था। शॉर्ट सर्किट की बिना पे जो ना आग लगी है, और अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि बार वक्त पे जो है ना फायर ब्रिगेड भी पहुँच गई, और माशाल्लाह हमारी एम्बुलेंस और ये वो सब इदारे पहुँच गए थे, और इंशाल्लाह ये तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर कवर करके इसको बुझा दिया गया। बिल्कुल जी, 2 घंटे के बाद जद्दोजहद के बाद जो है वो आग पर जो है काबू पा लिया गया। यहाँ पर मौजूद जो है तमाम मुल्का जो एनी शाहिदीन थे, और जहाँ मुल्का इमारत के लोग, बल्कि फैक्ट्री का ऑनर, इनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कोई जानी नुकसान की इतला तो मौसूल नहीं हुई। आग जो भड़की वो एक ही जगह पे थी, उसे फ़ौरन फायर ब्रिगेड फ़ौरन आ गई?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر الحمدللہ جی, جو چیزیں رب کی طرف سے سارا کچھ ہو رہا ہے. بہرحال آگ لگی اور ہمیں بھی نہیں پتہ چلا, شارٹ سرکٹ ہوا, آگ لگ گئی, ورکر کام کر رہا تھا. جو ہم سے ہو سکتا تھا انیشیل سٹیجز پہ ہم نے کیا, دین فائر بریگیڈ اور یہ آپریشن انہوں نے سارا کیا ہے بہتر انداز میں, جس سے بھی کر سکے وہ جو کر سکے. بہرحال ابھی کنٹرول میں وہ پوری. بالکل جی, آگ کنٹرول میں اور فائر بریگیڈ کا عملہ اس وقت موجود ہے اور جو کولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے. دلدار صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. دلدار صاحب مجھے بتائیے گا کہ کتنی دیر میں قابو پایا, کتنی گاڑیاں تھیں, کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی؟ 3 گاڑی پانی لگا ہے اس میں, اور انشاءاللہ جانی نقصان نہیں ہے. پیپر تھا اندر مشینوں میں, وہ چھوٹا سی اس میں آگ تھی. یہ 2 گھنٹے لگے ہیں زیادہ, 2 گھنٹے میں قابو پا لیا, ختم کر دیا, کلیئر کر دیا ہم نے. ابھی کیا چل رہا ہے؟ ابھی کلیئر ہے بالکل, آگ فائنل ہے. بالکل جی, کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں. فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیوں نے جو ہے وہ کام کے. ابتدائی طور پہ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ وجہ آگ کی جو بنی وہ شارٹ سرکٹ معلوم ہوتی ہے, لیکن مزید تحقیقات کی جائیں گی, رپورٹ مرتب کی جائے گی, اس کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے. فائر بریگیڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر جو سپلائی دینے والی کمپنیاں جس میں واٹر بورڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ الیکٹرک اور سوئی گیس جو ہے ان تمام نے بر وقت پہنچ کر جو ان کے کنیکشن منقطع کیے گئے اور 3 گاڑیوں کی مدد سے جو ہے 2 گھنٹے کے آپریشن کے بعد جو ہے وہ آگ پر قابو پا لیا گیا. جی, ڈسٹرکٹ ایسٹ نیو ٹاؤن تھانے کی حدود میں پولیس مقابلے کے دوران نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ. پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر راکیش کمار کے نوٹس کے بعد پولیس کی دوڑیں. ایس پی گلشن ظفر چھانگا کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی کی انکوائری مکمل, مقابلہ جعلی نکلا. ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ نے مقتول کے والد کی مدعیت میں انسپکٹر فرمان کے خلاف نیو ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا ہے. ایسٹ نیو ٹاؤن تھانے کی حدود میں ہونے والا مقابلہ جعلی نکلا. مبینہ پولیس مقابلے میں ہندو نوجوان کمل جو اپنے گھر کی شادی کے لیے ڈیکوریشن کا سامان لینے نکلا تھا, راستے میں نیو ٹاؤن تھانے کے باہر کھڑے سول ڈریس کے تفتیشی انسپکٹر نے موٹر سائیکل پر سوار کمل اور اس کے ساتھی کو روکنے کا اشارہ کیا. تیز رفتاری کے باعث نہ رکنے پر انسپکٹر نے گولی چلا دی اور پولیس مقابلہ قرار دے ڈالا. مقتول کمل کے اہل خانہ نے نیو ٹاؤن تھانے کے باہر احتجاج کیا. پیپلز پارٹی کے مائنورٹی ونگ کے انفارمیشن سیکریٹری ڈاکٹر راکیش کمار نے نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ مقابلہ جعلی ہوا ہے اور مقابلے کے نام پر بنایا گیا مقدمہ بھی جھوٹا ہے. سندھ حکومت میں پولیس گردی کسی صورت برداشت نہیں کرے گی. ایک معصوم شہری کی جان لے کے اس کے اوپر ایک جھوٹی ایف آئی آر نکال کے گئی, پولیس بدنام ہوئی ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے نہ یہ پولیس گردی برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایسے ظلم کو ہم ہونے دیں گے. ڈاکٹر راکیش کمار نے کہا کہ مقتول کمل اپنے گھر سے 80,000 لے کر نکلا تھا. سول ڈریس اہلکار نے مکمل غلط فائرنگ کی. بقول ان کے کہ ان کی جیب میں 80,000 اور 2 موبائل تھے. جو ان کی کمیٹی تھی وہ پیسے لے کے وہ گھر جا رہے تھے. وہ ان کو ڈیکوریشن کے لیے جو گھر میں شادی تھی تو ان کے لیے جا رہے ہیں. وہ بھی ہم نے پولیس والوں کے بولا ہے کہ وہ بھی ریکور کر لیں, لیکن یہ ایک چھوٹا لاس ہے. جو بڑا لاس تھا وہ ایک معصوم کی جان گئی ہے. ایس پی گلشن ظفر چھانگا کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی کی انکوائری مکمل کر کے ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ کو پیش کر دی, جس کے بعد ایس پی ایسٹ کے احکامات پر مقتول کے والد کی مدعیت میں پولیس انسپکٹر فرمان کے خلاف 302 کے تحت نیو ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا. کیمرہ مین ذیشان نواب کے ساتھ انوشا جعفری, سٹی 21. ناظرین, لائنز ایریا میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شروع ہونے والا احتجاج اب تک نہیں تھم سکا. شہری کہتے ہیں کہ رات 2 بجے کی گئی بجلی صبح 9 بجے آتی ہے, مگر بجلی کی عدم موجودگی کی وجہ سے صبح کام پر جانا مشکل ہو جاتا ہے. مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے طاہا ملک سے. جی بالکل, اس وقت میں لائنز ایریا کے ایریا میں موجود ہوں جہاں پر بجلی کی بندش اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے علاقہ مکین جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے دھرنا دے دیا. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو علاقہ مکین ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. اس سڑک کے حوالے سے اگر بتانا چاہوں تو یہ سڑک جو ہے وہ ایک طرف سے شارع فیصل کو ٹچ کرتی ہے, یہاں سے جانے والی روڈ, اور وہاں سے آنے والی جو دوسری طرف سے روڈ ہے وہ شارع فیصل سے آ کر کے لکی سٹار تک جاتی ہے. اور یہاں پر اس دھرنے کی وجہ سے شدید جو ٹریفک ہے اس کی روانگی بھی متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ علاقہ مکین کچھ موجود ہیں جن سے مزید گفتگو کرتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کس وجہ سے آپ لوگ جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں اور کتنی ٹائم سے یہاں پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ غیر اعلانیہ اور شیڈنگ ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. کیسی محکمہ اس کا کوئی باغ دوڑ نہیں ہے, کوئی پرسانی حال نہیں ہے, کیونکہ وہ تو یہودی لابی چلا رہا ہے. اچھا, جس کو یہودی لابی چلائے گا وہاں مسلمانوں کی کیا عزت ہوگی؟ اذان کے ٹائم یہاں بند ہوتی ہے, رات کے سوتے ہوئے ان کی یہاں بند ہوتی ہے. پتہ نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں. یار اتنی مشکل انسان کو یہ ہے کہ دل کے مریض ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, بل پیمنٹ کرتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ
हमारे आप बताइएगा कि ये जो दौरानिया है, ये दौरानिया कितनी देर का है, कितनी देर लाइट आती है और कितनी देर? 3.5 घंटे लाइट देते हैं यहाँ पर बस। उसके बाद मच्छर इतने हैं, बच्चों को सोना मुहाल हुआ है। अच्छा सर जी, मुझे आप बताइएगा कि किसी किस्म के जो है मुतालबात आपके माने गए हैं, तो किसी ने आपसे राब्ता किया है, किसी किस्म के इलेक्ट्रिक के जो अफसरान हैं उनसे आपसे कोई मुतालबा हुआ, कोई बात रखी उन्होंने, आपने उनके सामने? कर रहे हैं भाई, ये देखो, ये हमारे पास बिल है 5,118 रुपये आया, और ये लोड शेडिंग हो रही है रोजाना, कोई फायदा ही नहीं है हमें। बिल भी भर रहे हैं फिर भी कोई फायदा नहीं है हमें। ऐसे ही बिल भेज रहे हैं, कोई हमें ऐसे ही यूनिट देखो, ये कोई हिसाब, ये देखें, अब देखते हैं हमारा क्या हाल होगा। ये गरीब आवाम के ये रोडों पे खड़ी है, अब परेशानी में है, रात को मच्छर काटते हैं, हम सो नहीं सकते, पूरी रात जागते रहते हैं और काम पे नहीं जा सकते। जी बिल्कुल, यहाँ पर इलाका वकील मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना था कि बिल तो यहाँ आ रहा है, लेकिन बिजली की जो फराहमी है वो मुअत्तल है, वो रोजाना जो है वो मामूल के मुताबिक नहीं आती, और जो है वो बिजली आती कम है और जाती ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनकी जो ज़िंदगी है वो जीना जो है वो मुहाल हो गया है। जी, करंगी की यूसी 8 में कायम मॉडल पार्क ज़िलाई इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बाइस तबाह हो गया। पार्क में बच्चों की तफरीह के लिए लगाए गए झूले नशई चोरी करके ले गए। तफसीलात जान लेते हैं सादत हुसैन की इस रिपोर्ट में। की गफलत, शहरियों से तफरी के मकामात छिनने लगे। करंगी यूसी 8 सेक्टर 34 में 2006 में बनाया जाने वाला मॉडल पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। पार्क में लगाए गए झूले, लाइट्स, पौधे सब तबाह हो गए। पार्क के बारे में इलाका मकीन कहते हैं, पहले ये बेहतरीन फैमिली पार्क हुआ करता था, जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस अब तबाह हो चुका है। ये बहुत अच्छी कंडीशन में था, इसको 4-5 माह हुए, ये बर्बाद हो चुका है, कोई देखने वाला नहीं है, ग्रिलें नहीं है इसके अंदर, झूले वूले, यहाँ तक के टंकी के ढक्कन भी ले गए हैं, और इंतजामिया से दरख्वास्त है कि ये पार्क को सही कर दिया जाए। ना लाइट है ना कुछ, यहाँ जब पहले पार्क खुला हुआ था बहुत रौनक भी थी और चहल पहल थी, जिससे आवाम का गुजर बसर और आना जाना आराम से होता है। यानी बल्दियाती इदारे उनकी नाअहली और अदम तवज्जो की वजह से इस पार्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। यहाँ पे पहले हम लोग फैमिलीज को देखा करते थे। 17 बरस कबल बनने वाला मॉडल पार्क अब रेत के मैदान में तब्दील हो चुका है। शहरियों ने पार्क की बहाली का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन जांशेर बलोच के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। न्यू कराची टाउन यूसी 4 में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। यूसी 4 से वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार उस्मान अंसारी कहते हैं कि हम जीत के बाद यूसी 4 की बुनियादी मसाइल फौरी हल करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल न्यू कराची टाउन यूसी 4 में मौजूद हूँ, और 7 मई बरोज़ एतवार को 11 नशिस्तों के ऊपर होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इस इलाके के अंदर जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन कैंपेन जारी है। इस वक्त मेरे साथ यूसी 4 से वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार उस्मान अंसारी साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इलाके की ये खिदमत किस तरीके से करेंगे अगर ये जो है जीतते हैं। जी उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि कौन से इस वक्त बुनियादी मसाइल हैं यूसी 4 के अंदर जिनको आप जीतने के बाद सबसे पहले हल करने चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हाफिज़ नईमुर रहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम पर एतमाद किया और यूसी 4 के अंदर हमें वाइस चेयरमैन के लिए नामज़द किया। जब इंशाल्लाह हम मुंतखब होकर आएंगे, इस इलाके के बुनियादी मसाइल, सबसे ज़्यादा जो मसाइल है वो पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, इसी तरीके से एजुकेशन का मसला है, इसी तरीके से यहाँ की टूटी फूटी जो सड़कें हैं तबाह हाल हुई हुई है, स्ट्रीट क्राइम का ज़्यादा इधर हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट का कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। इंशाअल्लाह जब 7 मई को हम जीत कर यूसी 4 को जीत कर जब हम आएंगे तो इंशाअल्लाह ये जितने भी मसाइल हैं सब मसाइल को इंशाअल्लाह हल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चारों वार्ड के काउंसलर जितने भी हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन स्वीप किया है, अक्सरियत से ज़्यादा हमने वोट लिए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा उम्मीद है हमें। इंशाअल्लाह 8 मई का जो सूरज होगा वो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का यहाँ पर किरण होगा। जी बिल्कुल, आपने जाना कि यूसी 4 के वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार उस्मान अंसारी साहब की ख्वाहिशात यही हैं कि जीतने के बाद यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करें, और ख़ुसूसी तौर पे इन्होंने ज़ोर दिया कि यहाँ पे तालीम का जो मसला है उसको जो है वो सबसे पहले उसके ऊपर काम करें और तालीम के निज़ाम को यहाँ पे बेहतर बनाएं। जी
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एसएसपी कोरंगी नवाज ने स्ट्रीट क्रिमिनल से निपटने के लिए स्ट्रीट क्राइम फोर्स के एहलकारों को मजीद हिदायत भी जारी कर दी हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से मजीद हिदायत भी जारी की गई हैं। इस हवाले से बता रहे हैं आपको स्ट्रीट क्राइम फोर्स के हवाले से तमाम नफरी और स्ट्रीट क्राइम फोर्स के एहलकारों को भी चेक करेंगे। ये कहा गया है एहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बॉडी वार्न कैमरास भी फराहम किए जाएंगे, जबकि शहरों की हिफाजत और जराइम पेशा के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये भी कहा जा रहा है स्ट्रीट क्राइम फोर्स के एहलकारों को मज़ीद हिदायत भी है जो जारी कर दी गई हैं। तमाम नफरी और स्ट्रीट क्राइम फोर्स के एहलकारों को भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा एहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बॉडी वार्न कैमरास भी फराहम किए जाएंगे। एसएसपी कोरंगी की जानिब से कहा गया है शहरी की हिफाजत और जराइम पेशा के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें एसएसपी कोरंगी हैं तारिक नवाज, उन्होंने स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए जो स्ट्रीट क्राइम फोर्स है उनके एहलकार के साथ जो है वो मुलाकात की। आज कोरंगी सनती एरिया में जाके जो है ना उन्होंने खुद ही तौर पे उन जो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो स्क्वाड टाइम किया गया उसके हवाले से मुलाकात की और उनको सब जो है वो क्राइम कंट्रोल करने की जो है वो हिदायत भी दी, जबकि जो है वो उनको ब्लड प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स और बॉडी वार्न कैमरास जो है ना उनको प्रोवाइड किए गए। जबकि एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज के मुताबिक बताया गया है कि इन सब एहलकारों को जो है वो खुसूसी हिदायत जारी किए हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स को खुसूसी तौर पे कंट्रोल किया जाए, जबकि मंशियात और दीगर जराइम के हवाले से भी उनसे सख्ती से जो है वो निपटा जाए। जी बहुत शुक्रिया, शाहरुख शाह तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा स्कूल तालीम ज़िला ठट्टा में IBA टेस्ट के जरिए 40% नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती करने का फैसला कर लिया, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने मुरासला जारी किया है। इस हवाले से बताइएगा आज़ाद नोडियो। जी बिल्कुल, सरकार ने महकमा स्कूल तालीम जिला ठट्टा में असातिज़ा की खाली असामियाँ जो प्राइमरी स्कूल टीचर है उनको मुकम्मल करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मजीद नया भर्तियाँ करने का फैसला कर लिया। इस वजह से महकमा स्कूल तालीम ने एक मरसला भी जारी कर दिया, जिसके तहत जो उम्मीदवार जिन्होंने 40% नंबर हासिल किए हैं उनको PSC के तौर पर भर्ती किया जाएगा। इस हवाले से इस वक्त महकमा स्कूल तालीम जो असातिज़ा का बुरहान है उसे निबड़ने के लिए नई भर्तियाँ करने का फैसला कर लिया गया, जिसके हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी मरासला भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद। सिंध सरकार ने महकमे बल्दियात सिंध में 2 ओहदों पर राज करने वाले 17 ग्रेड के 11 एडमिनिस्ट्रेटर से इजाफी चार्ज वापस ले लिया। महकमे बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से भी बताइएगा आज़ाद नोडियो, किस किस से इजाफी ओहदे वापस ले लिए गए हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा बल्दियात सिंध में 2 ओहदों पर राज करने वाले 17 ग्रेड के 11 एडमिनिस्ट्रेटर से इजाफी चार्ज वापस ले लिए। इस हवाले से महकमा बल्दियात सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जो 200 बात पर मुश्तमिल है, जिसमें जो अफसरान है उनमें गुलाम रसूल, मकसूद अली जतोई, जुल्फ़िकार अली चन्ना, अब्दुल सलूम खोसो, नदीम मोहम्मद सोलंकी, आफ्ताब रजा शेख और जावेद अली जतोई के अलावा अब्दुल्ला मेमन, सैयद साबिर हुसैन शाह, बाबर नफसी और अब्दुल फताह तगर से इजाफी चार्ज वापस ले गए। वो जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो जो एक ओहदे के अलावा 2 ओहदे रखते थे, जिन पर जो है महकमा बल्दियात में इस मामले का नोटिस देते हुए उनसे इजाफी चार्ज वापस ले लिए, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है महकमे बल्दियात सिंध की जानिब से। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स का टेक्सटाइल की बरामदात में बड़ी कमी पर शदीद तशवीश का इजहार। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने कहा है कि मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत ने बरामदात में बड़ी कमी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत ने बरामदात में एक माह में बड़ी कमी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 के मुकाबले अप्रैल 2023 में टेक्सटाइल की बरामदात में 29% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। टेक्सटाइल की बरामदात अप्रैल 22 के 1 अरब 74 करोड़ डॉलर के मुकाबले अप्रैल 23 में 1 अरब 24 करोड़ डॉलर रह गई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल ने टेक्सटाइल की बरामदात में बड़ी कमी पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। एप्टेमा चेयरमैन आसिफ इनाम ने हुकूमत से जीरो रेट की बहाली करने का मुतालबा कर दिया और साथ ही बरामदी सेक्टर के लिए रीजनल मुमालिक से मुकाबला करने के लिए टैरिफ रेट बहाल करने की भी अपील कर दी। जब हमें जीरो रेट के टैरिफ मिले और सही टैरिफ मिले और सही सप्लाई मिली तो इंडस्ट्री ने 30% एक्सपेंड किया। अभी तो उसके फ्रूट खाने का टाइम था, हम दरख्त ही काट रहे हैं हम तो यानी 30% जिस इंडस्ट्री को ग्रो के इस वक्त 26 अरब की एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी, यार अबाउट 2.2-2.4 बिलियन की हम बात कर रहे होते,
हम वापस जो है वो हो गए। चेयरमैन एप्टेमा ने कहा कि बरामदी सेक्टर को रीजनल ममालिक से मुकाबला करने के लिए बिजली का रेट 20 रुपए दिया गया था, जो खत्म हो गया है। साथ ही दरामदी LNG पर भी मिलने वाली रियायत भी खत्म कर दी है, जिससे लागत बढ़ चुकी है। चाइना की रिटेल सेल आई है अभी 2 दिन पहले, वो 20% रिटेल सेल की ग्रोथ हुई है। अगर ये का साथ बाजारी है तो पता नहीं क्या होगा, बूम। तो डिफरेंट इलाकों में है, अमेरिका वगैरह में थोड़ा रिसेशन है। यूरोप का तो जो रिसेशन है वो तो उनका सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है, उन्होंने खुद ही जो है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 10 माह में टेक्सटाइल की बरामदात में 14% कमी के बाद 13 अरब 74 करोड़ डॉलर रह गई, जो गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में 15 अरब 95 करोड़ डॉलर थी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। ख़वातीन के लिए बुरी खबर, आलमी मार्केट में सोना $25 महंगा होने पर 1 तोला सोना 1700 रुपये महंगा होकर पहली बार 2,22,700 रुपये की बुलंद सतह कायम की है और 1 तोला चांदी भी 20 रुपये इजाफे से 2,750 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक सोना और चांदी की कीमत की नई बुलंद तरीन सतह पहुँच चुकी है। उसकी वजह आलमी मार्केट में सोना $25 महंगा होना है। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की जानिब से 5 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें शहर भर से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर ताजरों ने शिरकत की। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की जानिब से मार्केट एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिरों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया। इफ्तिताही तकरीब में ताजिरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में टाइटल की फातेह टीम को मिलने वाली ट्रॉफी की रौनुमाई भी की गई। तकरीब में मौजूद KWGA के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि इस इवेंट से मार्केट में मौजूद ताजिरों के दरमियान बाहमी इत्तेहाद पैदा होगा। इस टूर्नामेंट का मकसद सिर्फ यही है कि हम इस पाकिस्तान में जो अभी आप देखें मईशत का हाल या हमारे कारोबारों का हाल है, उसमें बड़ा टेंशन है। छोटे को बड़े को सभी को टेंशन रहता है और जाहिर सी बात है थोड़ा एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए। तकरीब में शरीक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक यूसुफ बोले कि टूर्नामेंट में नौजवानों का अहम किरदार है। कोशिश है कि नौजवानों को सपोर्ट करें। इफ्तिताही तकरीब में स्पॉन्सर्स के दरमियान अवार्ड भी तकसीम किए गए। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। कराची में आलमी यौम सहाफ़त पर मुख्तलिफ तकारीब का इनाकाद किया गया और इस कराची प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ती तंजीमों के मुजाहिरे हुए। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। यौम सहाफ़त पर कराची के सहाफ़ी तंजीमें यक ज़बान दिखाई दी। कराची प्रेस क्लब में मुनक्किदा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि तमाम सहाफ़ती तंजीमों को मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए। ने आज तय किया है कि हम मीडिया इंडस्ट्री की बका के लिए और इस हमारे जो सहाफ़ी जो दोस्त हैं उनको उनकी फाइनेंशियल हवालों से हम मिल के मुश्तरका तौर पर APNS हुआ, PBA हुआ, CPNE हुआ और हमारी जो यूजेज़ हैं उस मिलकर हम मुश्तरका तौर पर उनसे बात करेंगे और पॉलिटिकल पार्टी से भी रब्ता करेंगे। पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अपील पर KUG ने कराची प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरे से GM जमाली, एजाज अहमद, सईद सिरबाजी, शुएब अहमद, नेमत खान और दीगर ने खिताब करते हुए सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि तशद्दुद के वाक़यात में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जानिब सिंध प्रेस क्लब की जानिब से कोरंगी में खातून सहाफ़ी रुबीना अरशद पर कातिलाना हमले के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से रुस्तम जमाली, साईं बख्श और दीगर ने खिताब किया। कराची प्रेस क्लब में सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का इजलास जस्टिस रिटायर्ड रशीद A रिजवी की जेर सदारत हुआ, जिसमें सहाफियों के मसाइल के हल के लिए गौर किया गया। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लेता है।